Hi guys, this is part 2 of Polity Previous Year Questions which we are doing, and in this video we are going to cover the topics Union and its territory and fundamental rights. Also I have posted one correction in the first video. मैंने गलती से Schedule 4 लिख दिया है वहाँ पर in the PPT, and also I said मतलब मैंने एक बार Part 4 बोला है for Directive Principles of State Policy, लेकिन फिर से मैंने एक बार गलती से Schedule 4 बोल दिया है. So I have posted that correction in the comment. So any video you watch, please watch the comment, क्योंकि मैं अगर कोई गलती ढूंढ पाती हूँ या कोई मेरे viewers मुझे बताते हैं, then I like post it there. और आपको भी अगर कोई mistake मिले, then please write there in the comments, because ऐसा नहीं है कि 100% full proof कोई चीज़ नहीं हो सकती, और ये तो studies है, यहाँ तो गलती होनी ही होनी है. So अगर आपको लग रही है कहीं भी कि आपको ये सही नहीं लग रहा, please post that in the comment and I'll check that out and I'll reply you there. So now we can start the video. Thank you. First question is from the year 2012. With reference to the Delimitation Commission, consider the following statements. First, the orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. Second, when the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modifications in the orders. Which of the statements given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. So please pause the video and then we'll discuss the answer. So the answer is option C, both 1 and 2, and this is बिल्कुल knowledge based question. तो आपको पता होना चाहिए that any order of the Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. Delimitation Commission क्या होती है? जो आपके इलेक्शंस होते हैं उसमें जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज डिसाइड करती है कि होता है ना उसके एक एरिया का क्या बाउंड्री होगा, तो वो सारी चीजें डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करती है. सो उनके ऑर्डर्स दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. Okay, and when the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modifications in the orders. तो उनके जो orders है उसमें कोई modification नहीं कर सकती लोक सभा या State Legislative Assembly. So let's proceed to the next question. Next question from the year 2019. Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? A. Article 19, B. Article 21, C. Article 25, D. Article 29. ये क्वेश्चन तो सही करना ही है ना, शादी की बात है. Okay, so pause the video and I'll discuss the answer. So the answer has to be Article 21, that is right to life and personal liberty, क्योंकि वहीं पे आपको जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार मिलता है, जिसके तहत आप जिससे मर्जी चाहे शादी कर सकते हैं. करेक्ट. और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली 2017 ऑर्डर था केरला हाई कोर्ट का, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने एक केरला मुस्लिम कन्वर्ट गर्ल हादिया और उसके हस्बैंड सफीन जहान की शादी को नलिफाई कर दिया था. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है, हर इंसान को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है, एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नेक्स्ट नाउ अगला सवाल चलते हैं. Question from the year 2018. Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? First, limitation of powers. Second, equality before law. Third, people's responsibility to the government. Fourth, liberty and civil rights. Select the correct answer using the code given below. Option A, 1 and 3 only. Option B, 2 and 4 only. Option C, 1, 2 and 4 only. Option D, 1, 2, 3 and 4. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, 1, 2 and 4 only. यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पूछा है, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जजेस को अपनी मोरालिटी को क्वेश्चन में नहीं लाना है, जो एग्जैक्टली लॉ में लिखा है बिल्कुल बस उसको फॉलो करना है, वो होता है रूल ऑफ लॉ. कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर किसी मोरालिटी से पास नहीं होगी, सिर्फ लॉ के बेस पर पास होगी, चाहे लॉ में जो भी लिखा है उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ
पावर्स। तो मेन फीचर्स में आता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी तरीके के आर्बिट्ररी पावर को लिमिट कर देता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जो लॉ में लिखा है आप वही कर सकते हैं। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई लॉ के सामने बराबर है, कोई कहीं का कलेक्टर हो या कोई कहीं का कुछ भी हो, राजा हो महाराजा हो, सबको सेम ही ट्रीटमेंट मिलेगी, कोई यहाँ पे प्रिविलेज्ड नहीं है बिफोर लॉ। थर्ड जो था, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, तो ये रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट पहली बात कहीं पे भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखें तो वो भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं है, इट्स टू द कंट्री, राइट। ऑल्सो ऑप्शन 4 है आपका लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो डेफिनेटली आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मतलब लिबर्टी क्या बोलते थे हम लोग, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। तो इसीलिए हमें लिबर्टी के लिए लॉ चाहिए। तो लिबर्टी और सिविल राइट्स भी आपके रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स में आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइमेसी दी जाती है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को, और ये सारी बातें किसने propound किया था या किसने प्रपोज किया था, एवी डाइसी ने। उन्होंने बोला था दैट रूल ऑफ लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब राइट्स जो है इंडिविजुअल के वो सबसे ऊपर हैं। सो ये सारी चीजें एवी डाइसी ने बोले थे। उनके रूल ऑफ लॉ में ये तीन मेन चीजें, ये पॉइंट्स बोले गए थे, तीन फीचर्स जो रूल ऑफ लॉ के होने चाहिए, ये तीनों थे वो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from the year 2018. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Option A, Article 14 and the provisions under the 42nd Amendment to the Constitution. Option B, Article 17 and the directive principles of state policy in Part 4. Option C, Article 21 and the freedoms guaranteed in Part 3. Option D, Article 24 and the provisions under the 44th Amendment to the Constitution. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer has to be again option C, Article 21 and the freedoms guaranteed in Part 3. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि Article 21 क्या है, right to life and personal liberty, और यहाँ already question में लिखा हुआ है कि right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. तो अगर आपको पता है बस कि Article 21 ये right to life and personal liberty है, तो आप सीधा आंख मूंद कर ऑप्शन सी दे आंसर कर सकते हैं। आपको सेकेंड पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, द फ्रीडम्स गारंटेड इन पार्ट 3, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में कहीं आर्टिकल 21 है ही नहीं। ओके, सो और एक चीज जो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड इट ओवररूल्ड पास टू जजमेंट्स इन एमपी शर्मा केस 1954 एंड खड़क सिंह केस 1961। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट and is an intrinsic part of Article 21, right to life and personal liberty. So let's proceed to the next question. Next question from the year 2017. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Option A, rights are correlative with duties. Option B, rights are personal and hence independent of society and duties. Option C, rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen. Option D, duties not rights are important for the stability of the state. So please pause the video और आराम से सोचिए rights और duties पे, okay? And I'll discuss the answer. So the answer is option A, rights are correlative with duties, and fundamental duties were added to the Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976. और तभी इंदिरा गांधी ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि जो लोग अपने हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स के बारे में बहुत अवेयर है, लेकिन ड्यूटीज के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लाई भी नहीं गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये सोच रहे थे कि लोग इतने खुद ही अच्छे हैं कि वो अपनी ड्यूटीज वैसे भी करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाया तो उन्होंने फील किया दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ड्यूटीज टू द कंट्री। तो इसीलिए थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई थी, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी दैट वाज ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके, तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए
यू कैन अंडरस्टैंड कि राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ऐसा नहीं है, आप ये दोनों एक साथ आते हैं, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी आती हैं, आप सिर्फ राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते, आपको ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी, इसीलिए बाकी जो ऑप्शंस हैं वो एक्चुअली सही नहीं है। अगर ये लाइन लिखी हुई है, यू हैव टू गो विद दिस लाइन, ओके। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, गलत। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, वो भी गलत है, दोनों ही चाहिए पर्सनैलिटी के एडवांसमेंट के लिए। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, अभी स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट के लिए ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, नॉट राइट्स, ये कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, ये बहुत ही वैसे वन साइडेड व्यू वाला आंसर लगता है कि स्टेट स्टेबल रहेगा अगर लोग अपनी ड्यूटी करते रहे, लेकिन लोग ड्यूटी करेंगे ही नहीं अगर उनको राइट्स नहीं दे रहे हो आप। तो स्टेबिलिटी के लिए भी दोनों ही जरूरी है, लोग राइट्स एंजॉय करेंगे तभी ड्यूटीज को भी फुलफिल करेंगे, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question from the year 2017. Which of the following are emphasized by the right against exploitation in the Constitution of India? First, prohibition of traffic in human beings and forced labor. Second, abolition of untouchability. Third, protection of the interests of minorities. Fourth, prohibition of employment of children in factories and mines. Select the correct answer using the code given below. Option A 1, 2 and 4 only. Option B 2, 3 and 4 only. Option C 1 and 4 only. Option D 1, 2, 3 and 4. So let's pause the video and then we can discuss the answer. So the answer is option C 1 and 4 only. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो ही पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसमें से मेंशन है, वो है 1 और 4, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर जो आर्टिकल 23 में मेंशन है, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस विच इज मेंशन इन आर्टिकल 24. सो आर्टिकल 23 एंड 24 tells all this. आप थोड़ा रुक जाइए, देख लीजिए, and these are mentioned in the right against exploitation. आर्टिकल 23 क्या कहती है कि जो ट्रैफिक है, ये ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग जो होती है या फिर फोर्स्ड लेबर जो होता है, ये सारी चीजें प्रोहिबिट कर रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, आप नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल। और जो 24 है वो ये है कि बच्चों को आप फैक्ट्रीज और माइंस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, वो भी एक्सप्लॉइटेशन है बच्चों के लिए। ये सारी चीजें हमारी फंडामेंटल राइट्स में आती हैं, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question from the year 2017. In India, judicial review implies option A, the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. Option B, the power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. Option C, the power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the President. Option D, the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. So please pause the video and then we can discuss the answer. तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो ये कहती है एक्चुअली कि जो जुडिशरी है हमारी, वो हमारे लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या जो भी ऑर्डर्स के भी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के भी, वो कितनी सही है, वैलिड है, उसको क्वेश्चन कर सकती है। और अगर उनको लगता है कि कोई भी चीज जो बेसिक फीचर्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती है या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और बाकी अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी है विजडम ऑफ द लॉज को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ओके, कि क्या विजडम है। only if it is against basic features of the constitution, against fundamental rights, only then it will be declared void by the judicial bodies. सी जो ऑप्शन है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू द बाय द प्रेसिडेंट, एकदम से ही गलत है। अगर बेसिक प्रोसीजर आपको पता है बिल पास होने का, तो वहां पे कहीं भी बीच में जुडिशरी नहीं आती है, ओके। और जुडिशरी एक बिल जो एक्ट बन चुका है उसके ऊपर भी उसको भी वॉइड कर सकती है। इट्स इज नॉट दैट कि अगर एक बिल जो है वो एक्ट नहीं बना है, अभी तक पास नहीं हुआ है, या प्रेसिडेंट ने अपना मोहर नहीं मारा है उस पर, तो उस पर ही कर सकती है, बाकी जो एक्ट बन गया उस पर नहीं कर सकती। जुडिशरी किसी पे भी कर सकती है, ओके। एंड इनफैक्ट एक्ट बनने के बाद ही जुडिशरी क्वेश्चंस इट, क्योंकि जो एक्ट बना ही नहीं है वो एक्चुअली अभी तक
वैलिड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बिल तो बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं, प्रोपोजिशंस बनते हैं, लेकिन फाइनली वो एक्ट नहीं बन पाता क्योंकि पास नहीं हो पाता। सो एनीथिंग विच बिकम्स एन एक्ट ओनली ऑन दैट जुडिशरी प्लेज द रोल। ओके, ऑप्शन डी इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। ये एक्चुअली रिव्यू पिटिशन है। बहुत सारे पिटिशंस होते हैं जुडिशरी के, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जुडिशरी के पास अपना पावर है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, कि अगर कभी पिछले केस में कोई गलती हो गई जुडिशरी से जो कि एकदम से ह्यूमन राइट वायलेशन है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाती है, या फिर सामने वाले का स्टैंड ठीक से सुना नहीं गया, तो फिर जो जुडिशरी है उनके पास पावर है कि वो खुद की अपनी ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ओके, और एक बार हम लोग आर्टिकल 13 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 prohibits the parliament and the state legislatures from making laws that may take away or abridge the fundamental rights guaranteed to the citizens of the country। तो आर्टिकल 13 बोलती है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे या उसको वायलेट करे, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, ये आर्टिकल 13 में ऑलरेडी मेंशन है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from the year 2014. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the option A, preamble to the Constitution, option B, directive principles of state policy, option C, fundamental duties, option D, ninth schedule. So please pause the video and then we can discuss the answer. So the answer is option B, directive principles of state policy। और ये जो promotion of international peace and security है, ये article 51 में included है, which is the part included in the part 4, that is directive principles of state policy। So direct सवाल knowledge based आपको पता होना चाहिए। Okay, so let's proceed to the next question। और एक चीज है, आप अगर थोड़ा सा नोटिस करिए तो प्रियम्बल का टेक्स्ट आपको पता है, वहां पे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी नहीं लिखा था। फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बंदा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे प्रमोट कर सकता है? मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थोड़ा कंट्री लेवल चीज हो जाती है, करेक्ट। और नाइन्थ शेड्यूल के बारे में भी हमें पता है कि जो उसमें वो लॉज होते हैं जिसको गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू से बचाना चाहती है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी अगर आपको नहीं भी याद हो तभी के तभी कि ये है डीपीएसपी में, तब भी आप ये कर सकते हैं बाय स्ट्राइकिंग आउट अदर ऑप्शंस, है ना। सो यस, ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is from the year 2012. Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? 1. Directive principles of state policy. 2. Rural and urban local bodies. 3. Fifth schedule. 4. Sixth schedule. 5. Seventh schedule. So select the correct answer using the codes given below. Please pause the video and then I can discuss the answer. So the answer is option C, 1, 2 and 5 only। तो कैसे हम ये करेंगे? आपको पहली बात तो सारे शेड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल अगर आपको याद हो तो ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के प्रोविजंस के बारे में बात करती है, जिसमें फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ अदर स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात होती है। और सिक्स शेड्यूल में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ दीज 4 स्टेट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी बात होती है। फिफ्थ शेड्यूल में इन चारों को छोड़कर बाकी जो भी स्टेट्स है जहां पे भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां उसके बारे में प्रोविजंस हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल हमें पता है कि ट्राइबल एरियाज वगैरह के बारे में है, तो एजुकेशन के बारे में वहां पे बात चीज नहीं है। तो आपके लिए 3, 4 जो है वो हम हटा देंगे, तो आपका बी और डी जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया। तो अभी बच गया हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो आप देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन 5 जो पॉइंट है वो है सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में क्या आता है आपका? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें तो सारे ही फील्ड्स होंगे जहां पे हम लोग एक्चुअली डिवीजन करते हैं कि ये यूनियन ये देखेगा, स्टेट ये देखेगा, फिर कंकरेंट में दोनों मिलके ये देखेंगे। तो वहां पे तो एजुकेशन होना ही होना है, तो 5 तो होगा ही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1, 2 एंड 5 ओनली। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question from the year 2012. Which of the following is or are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution?
1. To preserve the rich heritage of our composite culture. 2. To protect the weaker sections from social injustice. 3. To develop the scientific temper and spirit of inquiry. 4. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. So please pause the video and then I can discuss the answer. So the answer is option C, 1, 3 and 4 only. तो यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आपको लग सकता है कि ऑप्शन 2 भी होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, हो सकता है बाद में ऐड हो जाए। लेकिन ऑप्शन 1 जो है, to preserve the rich heritage of our composite culture, this is a part of fundamental duty. To develop the scientific temper and spirit of inquiry, ये भी है fundamental duty हमारी। और टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है। और जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी वो 2002 में ऐड हुई थी बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। तो 6 और 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। आप अपने जो आपके बच्चे हैं वो ऐड हुआ था in 2002 in our fundamental duties. Okay, so let's proceed to the next question. Next question is from the year 2011. In India, if a religious sect or community is given the status of a national minority, what special advantages it is entitled to? 1. It can establish and administer exclusive educational institutions. 2. The President of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha. 3. It can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, that is if a community is given the status of a national minority, तो वो दो चीजें definitely कर सकती है, that is first it can establish and administer exclusive educational institutions, और एक और चीज जो हो सकती है, it can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. So that is why option C 1 and 3 only is the right answer. जो option 2 है actually, अगर मतलब हमें नहीं भी पता हो तो ऑप्शन 2 देखिए स्ट्राइक आउट हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, लोकसभा में नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते थे एंग्लो इंडियंस के लिए, लेकिन वो भी अभी अब हट गया है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड जो है वो गलत हो जाता है, तो बी और डी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, तो बच जाता है हमारा ऑप्शन ए और सी। तो यहाँ पे सी है आपका सही आंसर। ओके, थोड़ा और नॉलेज एनहांस कर लेते हैं माइनॉरिटीज के बारे में कि क्या एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो पीएम 15 पॉइंट प्रोग्राम की बात हुई ये क्या है। तो माइनॉरिटी के बारे में अगर हम देखें तो ये टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डिफाइन नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 ने माइनॉरिटी को डिफाइन किया है कि एनी कम्युनिटी विच विल बी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कौन से कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। तो हमारे अभी के करेंटली जो है अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, जो मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और जोरोस्ट्रियंस जो पारसीज हैं, ये सारे लोग अभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में हैं। ओके, और 3 आर्टिकल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज आर्टिकल 29 which gives any section residing in any area of our country having a distinct language, script और culture, जिन लोगों की भी कुछ अच्छी एक अलग लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो उनके पास उस चीज को कंजर्व करने का राइट है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने का राइट है। आर्टिकल 30 के हिसाब से जो भी माइनॉरिटीज हमारे देश में, ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो हर माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस की बना सकती है और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। आर्टिकल 350B है जिसमें हम लोगों ने स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के प्रोविजंस डाले हैं। ये एक्चुअली ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट इट वाज एडेड बाय
7th Constitutional Amendment Act of 1956, and this officer is particularly meant to protect the minority interests of our country. So yes, this is all about minorities existing provisions in the Indian Constitution या फिर जो act है National Commission for Minorities Act 1992, ये भी आपको पता होना चाहिए. Next, recently actually Prime Minister's new 15-point program has been like announced. So by the Ministry of Minority Affairs. तो आप अभी के लिए हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स भी ये हो गया और हमें ये भी पता चल जाता है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली है क्या. तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स को एक्चुअली हाईलाइट किया जाता है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनहैंसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन. तो एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं. उसमें से कुछ है कि इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. तो आईसीडीएस आपको पता होगा कि इसमें हम लोग फुल एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चे का जो सबसे छोटा वाला पीरियड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो वहां पे बहुत सारे सर्विसेज है जो प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट प्रॉपरली द चाइल्ड गेट्स डेवलप्ड इन द चाइल्डहुड. तो वो सारी चीजों की जो अवेलेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज पीछे रह जाए, उसमें सबको इक्वल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन सर्विसेज की. सेकेंड जो है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए. हमारे पास एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन. तो उसके थ्रू एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है. उर्दू को टीच करने के लिए ग्रेटर रिसोर्सेस होने चाहिए. मदरसा एजुकेशन को थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है, और भी कुछ चीजें हैं लाइक ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड कि कैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाएं अगर कुछ लोग पीछे रह जा रहे हैं बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी. तो वो हमें करना चाहिए एंड दिस हैज बीन हाईलाइटेड इन द 15 पॉइंट प्रोग्राम. सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है इक्विटेबल शेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी यही इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको किसी को कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, लेकिन हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. बस इतना ही काफी है. वो कोई भी सेक्शन का हो, कोई भी जगह का हो, इट डजेंट मैटर. इफ समवन इज गेटिंग if someone is getting equitable opportunity, they are वो खुद ही डेवलप हो जाएंगे. तो यहाँ पे भी हम वही बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वेज एम्प्लॉयमेंट हो फॉर द पुअर, या फिर स्किल्स अपग्रेडेशन की बात हो, या फिर इनहैंस क्रेडिट सपोर्ट. अगर हमें कोई किसी को लोन चाहिए तो वो अच्छे से मिले, या फिर अगर जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट है टू स्टेट एंड सेंट्रल सर्विसेज, उसमें भी अच्छा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारे लोगों को. थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ लिविंग ऑफ माइनॉरिटीज. तो यहाँ पे ये फोकस किया गया है कि जो भी लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए. फिर आपका रूरल हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे भी इक्विटेबल शेयर होना चाहिए. फिर एक और स्कीम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमरूत. तो ये सारी जगह पे इक्वल शेयर इन सारे कम्युनिटीज को मिलना चाहिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको भी. और इससे उनके रहने के जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे जिन लोगों के पास नहीं है. और जो फोर्थ है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनल राइट्स, जो एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक कि राइट्स आर समथिंग ओनली फॉर लाइक पॉलिटिकल मोटिव्स. एक नॉर्मल इंसान को कोई फर्क नहीं, मतलब एक नॉर्मल इंसान हमेशा अमन और शांति चाहता है. तो राइट्स तो मुझे नहीं लगता कि किसी कॉमन इंसान को डर नहीं लगता. राइट से कोई नहीं चाहता, बट स्टिल होते हैं हमारे देश में. तो उसके लिए प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए प्रोविजंस होने चाहिए. जैसे कोई अगर होता है ना ऐसा मुद्दा उठ रहा हो तो पहले से ही एक्शंस ले लेना चाहिए ताकि कम्युनल राइट हो ना. और अगर हो गया है, कुछ लोग अगर पाए गए हैं कि ये लोगों ने ही भड़काया था, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए. और अगर उसमें जो भी विक्टिम्स हुए उसके बाद जिनको जिनको तकलीफ पहुंची है उस राइट में, तो उन सबके रिहैबिलिटेशन के लिए भी प्रोविजंस लाए जाएंगे अंडर द 15 पॉइंट प्रोग्राम as mentioned in the objectives. So this is all about the 15 point program जो minorities के लिए Prime Minister ने announce किया है. And actually this was announced by the Ministry of Minority Affairs, and this is called as Prime Minister's new 15 point program, and this is meant for minorities. So ये आपके option में था, and you should know कि ये क्या होती है. Okay, and I believe personally I believe that uh, like our country is really superb and I love the diversity. So I love
एवरी जो कल्चर है ना यहाँ पे इतनी प्यारी है, आई जस्ट लव दैट. एंड इट्स नॉट लाइक अबाउट कम्युनिटीज, आई थिंक रीजनल बेसिस पे भी जो कल्चर वेरिएशंस है, इट्स सो स्वीट यार. आई हैव बीन इन केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार. बिहार में मैं पैदा हुई हूँ. सो एटलीस्ट इन 4 स्टेट्स का मुझे पता है. एंड रियली यू विल सी द वेराइटी मैन. आई रियली वांट टू ट्रैवल टू अदर पार्ट्स आल्सो. एंड यस, आई हैव बीन टू सिक्किम एज वेल. तो अच्छे है यार, सारे प्लेसेस बहुत प्यारे हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो द वीडियो एंड्स हियर. और मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने स्टार्ट किया था ना पिक्चर को एंड में देना पीपीटी के, दिस वाज एक्चुअली टू एंड द द मोनोटोनस जो हो जाता है ना पढ़ाई, एकदम से आप आदमी बॉग डाउन हो जाता है. तो मैं चाहती थी कि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो जब आप वीडियो एंड हो रहा हो, तो आप थोड़ा आराम करें, चिल होके बस 2 मिनट बकवास सुने मेरी. तो वहां पे मैंने ऐसा सोचा कि फिर यहाँ पे एक, क्यों ना हम एक गेम शुरू कर दें इस चीज के बारे में. क्या है, बचपन में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में. ओके, सो बचपन में क्या होता था, एक ही चीज मुझे लगती थी कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ उसमें. दैट वाज इम्प्रॉम्प्टू. मतलब वो होता है ना, एकदम से टॉपिक इंस्टेंट देते हैं और आपको तुरंत बोलना होता है, आपको सोचना नहीं होता. तो मुझे लगता था कि मैं उसमें थोड़ी बुरी थी, क्योंकि मुझे टॉपिक दे दो तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, थोड़ा सा. वो थोड़ा सा टाइम अगर आप मुझे नहीं दोगे तो फिर मैं एकदम कचरा फैलाऊंगी. मैं वो कचरे में भी जीत जाती थी वैसे, बट बट वो अलग बात है. मतलब वो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, मुझे खुशी नहीं मिलती थी उसके बाद. तो मैं कुछ कुछ बोल देती थी. मतलब क्या है ना, मैं एक बार बोलना शुरू कर दूं फिर मुझे पीछे पीछे से कुछ कुछ आइडियाज आते रहते हैं, तब मैं बोलती हूँ. बट स्टिल आई फेल्ट कि वो बेटर किया जा सकता था. सो उसी चीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, कि एक जो पिक्चर हम एंड पे ला रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इम्प्रॉम्प्टू बस वो पिक्चर देखना है. एंड यू हैव टू इमीडिएटली राइट वट एवर यूर थिंकिंग. इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी एन आइडिया, एनीथिंग एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है उस पिक्चर को देख के, प्लीज राइट दैट डाउन इन द कॉमेंट. ओके, तो इट विल बी अ गेम, और हमें मजा भी आएगा. और इससे हमारा वो होता है ना, माइंड एक्सरसाइज भी होगा, थोड़ा आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी. तो एग्जाम्स में जो शॉक्स मिलते हैं हमें, उससे हमें उसे हमें हैंडल करने की ज्यादा शक्ति मिलेगी, मेंटली एंड फिजिकली. सो यस, वी नीड दिस एक्सरसाइज. तो आज का जो ये पिक्चर है, अगर इसको देखें, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा तुम क्या ही बोल रहे हो, तुम ही ने तो बनाए हैं पीपीटी, तो देखिए, एक ही क्वालिटी है जिसपे आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो है मेरी ऑनेस्टी. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने पिक्चर लगाया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है और वीडियो स्टार्ट किया है, तो मैं सच बोल रही हूँ. ओके, सो मैंने भी कुछ नहीं सोचा है, आपको भी कुछ नहीं सोचना है, देखना है, और जो दिमाग में आए उसको ईमानदारी से लिखना है. ओके, नो चीटिंग अलाउड. सो यस, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये गोरिल्ला जी ने पिंक ग्लासेस पहने हैं, मतलब बहुत ही कूल टाइप के गोरिल्ला हैं मेरे तरफ. और सेकेंड जो चीज है, इनको बीचेस बहुत पसंद है, क्योंकि इनके चश्मे में बीचेस दिख रहे हैं और ये सोच भी यही रहे हैं, आई लव कैब्रेट बीच. तो बीच बहुत पसंद है इनको, और इसीलिए जो ये सोच रहे हैं वही इनको इनके ग्लासेस में दिख रहा है. तो इसका मतलब है इनके जो ग्लासेस हैं वो थिंकिंग ग्लास हैं, माइंड रीडर. जो आपके दिमाग में आता है वो आपको चश्मे में दिखने लगता है. माइंड रीडर ग्लासेस. यो मैन, मैंने हॉलीवुड के अगले प्रोजेक्ट का वो लिख लिया, स्क्रिप्ट. यस. सो यस, अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं. ओके, और अगर आपने सिमिलर सोचा है तो वो भी लिखो यार, बिंदास, कोई बात नहीं है. ओके, अगली बार से क्या है ना, कि ये वाला तो फर्स्ट था तो ठीक है, बट अगली बार से मतलब क्या करना है कि पिक्चर पे ही पॉज कर देना है, मेरी कहानी सुननी नहीं है. ओके, चीटिंग नहीं चलेगी. और आप बस अपना पहले कमेंट लिख दो, फिर आप मेरा वीडियो देखना, मतलब मैंने क्या बोला है, अगर आपको सुनना है तो. और मुझे लगता है कि इतना प्यार तो आपको मुझसे हो ही गया होगा कि आप मुझे सुनना पसंद करेंगे. और अगर नहीं हुआ है तो फिर चन्ना मेरे. ओके, सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.